Hello guys, welcome to our channel Education Group. Today we are going to learn about how we can do a and the, or we can say how we can perform articles. Let us start with the a and an. Today we are going to see now the uses of a or an. Look these sentences. A girl like a toy. A cat has a tail. A dog is an animal. ए एंड एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स लाइक गर्ल्स टॉय कैट टेल डॉग एक्सेट्रा के पहले अवश्य होता है। जो ए और एन है इसका यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले करते हैं, जैसे कि हमारा टॉय एक नाउन है और वो भी सिंगुलर है। ये काउंटेबल होते हैं, हम टॉयज को गिन सकते हैं। ऐसे ही पूंछ, एक कैट की एक टेल है तो ये काउंटेबल है और सिंगल भी है। तो इन सब के पहले हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन कांस्टेंट हो, कांस्टेंट यानी कि BCDF एटसेट्रा, जो AEIOU के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उससे उनके साथ हम ए का यूज करते हैं। और जितने भी काउंटेबल नाउन्स हैं वॉल्स, जो वॉल्स से शुरू होते हैं लाइक AEIOU से, उनके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। These are some exceptions cases like H is an consonant word, so we should use with it A. But somehow H is silent in some words, like it. We will read it as R. R. This O. This H is silent here, so we use N. This is R. So H is silent here. So when the H is silent, you have to use this N. Like honor. So we have to use N. Now we have to see much more about A और N. ए का इस्तेमाल हम किसकी साउंड के साथ करते हैं? जो भी वर्ड व की साउंड देता है, या की साउंड देता है, या यू की साउंड देता है, उन सब के साथ हम ए का यूज करते हैं। और जो भी वर्ड ए आ ई ओ ए की साउंड देते हैं उनके साथ हम एन का यूज करते हैं। जैसे हम नीचे देखते हैं एग्जाम्पल अ यूनिक थिंग। सो हेयर यू जो है वो साउंड दे रहा है यूनिक, यू की साउंड दे रहा है, दिस वन यू, so we use a useful book, useful book, so here the sound is coming u, so we have used a one-legged man, one v, here is a sound of v, so we use a here. Now we have to see more about n. He is an ma, here the sound m gives a and ma, so a sound is here, so we use n here, as we have already studied that in which the sound comes a we have to use n there. Like he is an sdo, a s, so here a comes, that means we have to use n. It is an rtc, rtc, so here this a sound comes, so we use n here. That's all about a and n. I think you should more clear about it. I think you must be clear about it all. Now we have to look towards the. Look at these sentences. Now in this video we are going to learn about the in detail. Who invented the radio? The television is a gift of science. I hate the telephone. He received a message on the wireless. किसी आविष्कार means invention के पहले दा लगता है. So we have see there wireless is an invention, telephone is an invention, radio is an invention, and television is an invention. So we have used the before them. He was wound in the leg. They hit him on the head. She caught him by the ear. The brick hit him in the face. Parts of the body के नाम के पहले दाग लगता है. So here head is a part of body, leg is the name of part of our body, arm is the name of part of our body, face is the name of part of our body. So we have used the before them. He plays the tabla.
Hari played the harmonium. Moti will play the violin. Can you play the trumpet? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले भी हमें द का यूज करना होता है. नाउ वी शुड मूव फॉरवर्ड. दिस इज द हाउस आई लिव इन. द बॉय इन द कॉर्नर is my brother. The tall man is the Minister of Health. जब किसी नाउन की व्यापकता किसी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फेस द्वारा सीमित कर दिया जाता है तब उस नाउन के पहले द लगता है. In this, the house is used as an adjective. The boy is used as an adjective. The man is used as an adjective, and these are also specified here, that the house in which I live. Okay, so we use the here. It is commonly specified here. Now we should see the next example. He is the clever of the two. This is the better of the two books. अगर किसी कंपैरेटिव डिग्री बेटर क्लेवर से सिलेक्शन या कॉन्ट्रैक्ट का बोध हो तो उसके पहले द लगाते हैं. जब भी हम चुनाव करते हैं दो लोगों के बीच में, जैसे कि ही इज द क्लेवरर ऑफ द टू, उन दोनों से ज्यादा ये चालाक है. दिस इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स, दोनों बुक्स में से ये वाली ज्यादा बेटर है. तो दोनों के बीच में जब हम चुनाव करते हैं या विरोध करते हैं तो उनके पहले द लगाया जाता है. These all are the properties where we use the. I wanted to see the principal. Where is the headmaster? Come to the blackboard in the class. द का प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जिससे किसी निर्दिष्ट व्यक्ति या वस्तु का बोध हो. जब भी हम किसी पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे हेडमास्टर से पहले. Look at these sentences. He is the Tagore of Hindi poetry. Viv Richard is the Bradman of today cricket world. द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले होता है यदि किसी व्यक्ति से समान गुण या स्वभाव वाले दूसरे व्यक्ति का बोध हो, जैसे ही इज द टैगोर ऑफ हिंदी पोएट्री. जब भी हम प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं तो उससे पहले हम द यूज करते हैं. तो इसमें टैगोर, जैसे कि इस सेंटेंस में टैगोर वर्ड जो है वो प्रॉपर नाउन है, इस सेंटेंस में ब्रैडमैन जो है वो प्रॉपर नाउन है, तो हमने इससे पहले द का प्रयोग किया है. इसमें क्या किया है, इसमें इन्हें कंपेयर भी किया गया है कि वो टैगोर है पोइट्री की, तो इससे पहले हमने इसलिए द प्रयोग किया है. Look at these sentences. I will catch the next bus. He missed the last train. They got the first taxi. Tom is the second son. द का प्रयोग नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड एटसेट्रा के पहले होता है अगर इनके बाद कोई काउंटेबल नाउन हो तो. लाइक लास्ट, नेक्स्ट, इन सब के बाद हमने काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया बस, जो कि गिनी जा सकती हैं. ट्रेन कितनी नंबर की ट्रेन है, एक ट्रेन, दो ट्रेन, ये सब गिनी जा सकती हैं. सो इनसे पहले हम द का प्रयोग करेंगे. मोस्ट, ऑल, मैनी, फाइव, अ हाफ, वन थर्ड, अ लार्ज नंबर, द माइनॉरिटी, ये सब प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से शुरू होने वाले सारे फ्रेजेस के साथ हम द का प्रयोग करते हैं. लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन होम, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन होम, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन होम, इन सब के साथ हम द का प्रयोग यूज करते हैं. Look at the following. The Hindus, the Muslims, the Sikhs, the Christians. किसी भी धार्मिक समुदाय के पहले हम द का प्रयोग करते हैं. जैसे कि किसी भी रिलीजन का हमने यहाँ नाम लिया तो उससे पहले हम द लगाएंगे. Look at the following. The army, the navy, the air force, the police. आर्म फोर्सेस तथा कानून लागू करवाने वाले नामों के साथ हम द लगाते हैं. जो भी हमारे पास फोर्सेज हैं या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज का नाम, उससे पहले हम द का यूज करते हैं. द सन, द अर्थ, द वेस्ट, द ईस्ट, द मून, द वर्ल्ड.
जो चीज, जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो उसके पहले दा लगता है। जो भी चीज इन द वर्ल्ड एक ही हो उसके पहले हम दा लगाते हैं। जैसे डायरेक्शन एक ही है, वेस्ट, वर्ल्ड एक ही है, अर्थ भी एक ही है, सन भी एक ही है और मून भी एक ही है, तो इन सबसे पहले हमने द का यूज किया है। दी गीता, दी बाइबल, दी वेदास, दी महाभारत, दी कुरान, दी रामायण, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले दा का यूज होता है। सो ये सब क्या है, हमारे रिलीजियस बुक्स। सो इन सब के नाम के पहले हमने दा का यूज किया है। लुक एट दिस, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द डायरेक्टर, द होम मिनिस्टर, द चेयरमैन। जब किसी व्यक्ति को उसके टाइटल यानी कि उसके पद के द्वारा इंगित करना हो तब उसे पहले दा लगता है। मैंने कहा था आपसे कि पहले किसी की भी पोस्ट से पहले हम दा लगाते, तो वो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पहले हमने दा लगाया, होम मिनिस्टर एक पोस्ट है उससे पहले दा लगाया, पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं। द कम्युनिस्ट पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी, द लेबर पार्टी, द डेमोक्रेटिक पार्टी, इन सारी पार्टीज के नाम के पहले हम दा का यूज करेंगे। द गंगा, द इंडियन रिवर, द गोदावरी एंड द पैसिफिक ओशन। सारे ओशंस के नाम के पहले, रिवर के नाम के पहले हम दा का यूज करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। This was all about A and Da. Please like and subscribe to our channel and comment in the comment section that how do you like the video, what was the content about it. And if you have any kind of doubt and query, then you can write in comment. Please like and subscribe to our channel to get the new updates of our video recent.